اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما، درہائے بستراز کلید کرم کشا، حق کہنا اور حق پر رہنا، حضور سید محمد اظہار اشرفی الجیلانی سجادہ نشین سرکار کلاں ارشاد فرماتے ہیں، حق پر رہنا اور حق پر چلنا، حق کہنا اور حق پر رہنا، کچھ اپنوں کو راس نہ آیا، ظلم و ستم کی چھاؤں میں رہ کر کتنے سہے صدمات نہ پوچھو۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لعنت اللہ علیہم علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو، ہے نا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں صوفی زبیر اشرفی مستان بابا، میں جو ہوں تو سگے بارگاہ اشرف ہوں، سگے بارگاہ اشرفی ہوں، ہے نا، انہیں دربار اشرف کا کتا ہوں، اور سید صاحب محمد علی حسین اشرفی میاں کا کتا ہوں، اور خاک پائے حضور سرکار کلاں ہوں۔ سید محمد مختار اشرف سرکار کلاں مرشد پاک، مرشد اعظم میرے پیر و مرشد ہے، مجھے ناز ہے، میرے پیر و مرشد مختار اشرف ہیں، ہے نا۔ تو کل جو ہے تو آل مختار میں سے کچھ لوگوں نے مجھے کہا، حضور سرکار کلاں کی اولادوں میں سے کچھ لوگوں نے فون کیا، آپ کے نبیرہ پوتے حضرات نے کہا کہ مستان اتنی گالی مت بکو اور رجوع ہو جاؤ، اب توبہ کرو اس بات سے، ہے نا۔ مگر ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے حضرت، ہم آئندہ گالی نہیں بکیں گے، گالی سے کام نہیں لیں گے، مگر کہا کہ رجوع کرو، مگر ہم رجوع تو نہیں ہوں گے، چاہے آپ جو ہے تو میرے کو مرڈر کر ڈالو، زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے، آپ جہنم میں بھیجیں گے مجھے، بس یہی نا، اس سے زیادہ تھوڑی نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال جو ہے تو خانقاہ اشرفیہ حسنیہ سرکار کلاں کی طرف جو ہے سید نفیس اشرف صاحب، ہے نا، یہ میلی آنکھ سے دیکھے، یہ لوگ جو ہیں ان کے باپ دادا بھی جو تھے یہ بھی حضور اشرفی میاں کے پکے دشمن تھے، سرکار کلاں کے پکے دشمن رہے، سید محمد اظہار اشرف شیخ اعظم کے یہ لوگ پکے دشمن رہے، ہے نا۔ اور دشمنی کے اندر اب جب یعنی کہ ان کے وہاں دیکھ لیے کہ بھائی کوئی پبلک تو ہے نہیں ان کے وہاں، اس سے زیادہ پبلک تو محمود میاں کے وہاں ہے، تو اب وہ بولتے ہیں نا خیسیانی بلی کھمبا نوچے، ویسے نفیس اشرف جو ہیں تو یہ جو ہیں تو جا لوٹ رہے ہیں سید محمود اشرف میاں پہ۔ اب کہاں وہ بلرام پور کے اندر متھرا بازار میں ایک آستانہ ہے پیر حنیف شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ وہاں کے متولی سجادہ نشین بتا رہے سید نفیس اشرف، یہ چور دروازے سے جا کے، ہے نا، وقف بورڈ میں پیسہ کھلا کے متولی بن گئے ہوں گے۔ سجادہ نشین وہاں کے کیسے ہوئے؟ تمہاری اماں سے وہاں کا کوئی بلڈ ریلیشن ہے کیا؟ پیر حنیف شاہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کی اولادوں سے تمہاری اماں کا کوئی بلڈ ریلیشن ہے کیا؟ میری ابھی مجھے بولنے کو لیے منع کیا گیا ہے سخت الفاظ میں، اس لیے میں ادب سے پوچھ رہا ہوں، آپ کس طریقے سے وہاں کے سجادہ نشین بنے نا؟ اسی طریقے سے جامی میاں، رئیس میاں یہ کھمبات میں جا کے سجادہ نشین بنے، ہے نا۔ یہ سب بسخاری والے کچوچے والوں کے نام پہ کھا رہے ہیں، کما رہے ہیں۔ اشرفی میاں کا جبہ ٹوپی تاج پہنے ہیں، اپنے آپ کو سادات کچوچا کہتے ہیں، بسخاری کا بولو نا، بسخاری کا بولو، کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے تم کو بسخاری کے نام سے، سب لوگ پہچانتے ہیں تو کچوچا کے نام سے پہچانتے ہیں نا، جبکہ کچوچا شریف سے درگاہ 5 کلومیٹر دور ہے نا۔ تم تو جو ہے کہ رات میں وہاں بسخاری میں مرتے ہو، تم لوگ رات میں سوتے ہو، ہے نا۔ اور درگاہ جو ہے تو مشہوری ہے حضور اشرفی میاں کی وجہ سے، مجدد اعظم سلسلہ اشرفیہ سید شاہ محمد علی حسین اعلیٰ حضرت اشرفی میاں جو ہیں ان کی وجہ سے ہی یہ چمن آج آباد ہے۔ آپ لوگوں نے ان کا حجرہ توڑ ڈالا، ان کی خانقاہ توڑ ڈالی، ہے نا۔ اشرفی میاں کی خانقاہ تھی، جہاں پہ آج وہ عدالت ہوتی ہے نا، وہاں اشرفی میاں کی خانقاہ تھی۔ ان لوگوں نے سید نفیس اشرف، اس کے باپ دادا، اور یہ جو ابھی وکیل ایڈوکیٹ انتقال کرے فخر الدین اشرف، یہ سب ان کی گنڈا گردی سے جو ہے ان لوگوں نے جو تو اظہار میاں پہ حملہ کیا 29 تاریخ کو، ہے نا، قرآن پہلی کی اس میں، اس کے بعد یعنی حضرت کی جو ہے تو پیر میں زخم بھی آئے،
और सैयद नफीस अशरफ इसमें इनके बाप दादा सब पेश रहे, है ना। अब जो है तो सबसे पहले जो है तो ये सब फराडी लोग हैं, है ना। किचौचवी कहते हैं, तुम कहाँ के किचौचे वाले हो, बसखारी कहो, तुम कोई पहचानेगा भी नहीं, लोग पूछेंगे तुमसे बसखारी कहाँ है ना। रोड पे रह के बसखारी जो है तो मशहूर नहीं है, किचौचा इतनी अंदर इंटरसिटी रह के मशहूर है ना। ये भी तो वजह रही है ना। और ये रैबर बस्तवी, तेरा का तो नंबर मिल जाए ना, और जब तेरा पता मिल जाए, तेरी माँ एक हो और बाप ने एक हो, तो मुझे तो अपना पता एड्रेस बता और तेरा अपडेट भी बता, तू कहाँ आ रहा है कहाँ जा रहा है। फिर तुझे जो है तो तेरे हाथ पैर की सलामती की दुआ करते रहे तू, है ना। और आइंदा कभी ब्लॉग बनाया कुत्ते तो तेरी वो हालत करेंगे जो सलमान अज़हरी की हालत हुई है, बस इतना समझ लो, है ना। हम वही वाले हैं, मौलाई हैं, हम हुसैनी हैं, पंजतनी हैं, है ना। इस देश के वफादार हैं, और फिर तुम्हारा पूरा बायोडेटा हम निकाल लेंगे। बहरहाल मुझे मुगल्लिज़ात बकने से मना किया गया फिर भी जो है हमको कहा कि तौबा करो, मगर हमारी तौबा बस ऐसी ही है कि साकिया शराब से तौबा तौबा, मैंने दुनिया को बताने को कसम खाई है ना। दुनिया को बताने को कसम खाई है, कह रहे हैं तो भाई हमारे बुजुर्ग हैं, मालिक हैं, कह रहे हैं तौबा करो तो भाई सही, है ना। हम तो आले मुख्तार के चप्पल उठाने के लायक नहीं हैं। और जितने भी किचौचा के अंदर पीर बने फिर रहे हैं ना, ये सब के ऊपर फैज़ान है सरकार कना का और हुजूर अशरफी मियाँ का। ये जितने जिब्बा और ताज और ये सब पहन के जो घूम रहे हैं, है ना, ये सब के ऊपर जो हुजूर सरकार कना का हुजूर अशरफी मियाँ का फैज़ान है ना। आले रसूल, औलाद अली, ये जो तुम बने फिर रहे हो ना, ये है ना, तुमको तो सही से मार्फत इमाम हुसैन भी नहीं मालूम है तुम लोगों को, है ना। ये जो अशरफी जिलानी का टाइटल आपने जो लगाया है, ये हुजूर अशरफी मियाँ की वो है। अरे कम से कम अपने जाओ, आप लोग जाया करो, हुजूर अशरफी मियाँ के पाँव पड़ा करो, हाथ जोड़ा करो। जो आज आप एसी की गाड़ी में फिर रहे हो ना, ये अशरफी मियाँ का एहसान है तुम्हारे ऊपर। तो बहरहाल जो है तो मैं जब होश संभाला उस वक्त से मैं अपने आप को किचौचों की गलियों में देख रहा हूँ। और मेरे दादा जो थे वो भी हुजूर सरकार कना के मुरीद थे। मेरी परदादी हुजूर अशरफी मियाँ की मुरीद थी, है ना। मेरी दादी के जो भाई थे मुहद्दिस आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे। मेरी नानी जो थी वो अशरफी मियाँ की मुरीद थी, है ना। मैं मेरा बायोडेटा बैकग्राउंड बता रहा हूँ, बल्कि पीर हाजी अब्दुल गफूर सरकार बख्शुल्लाह सा रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, तो उनसे यानी कि हमारी दादा की ऊपर की ना रिश्तेदारियाँ भी थी, है ना। खुद यानी बहुत करीबी थी, यानी मुश्ताक बाबा वगैरह तो मेरे से पैसा नजराना भी नहीं लेते थे। मुश्ताक बाबा, रसीद बाबा जो हैं मुझसे नजराना नहीं लेते थे, बोलते थे पोते से क्या नजराना लेना, है ना। इतनी हमारी यानी अशरफियत की ग़ुलामी की सनद इतनी पुरानी है ना। हमने कोई मदरसा पढ़ के ज़कात खैरात खा के नहीं यानी कि अशरफी बने, है ना। मार्फत के साथ हम अशरफियत रखते हैं। और नफीस अशरफ साहब, आपको बड़ी मालूमात है सिलसिले की, तो लताइफ़ अशरफी से विलादत मानवी और विलादत सुवरी जो है, जो सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान की है, जरा आप इसको एक्सप्लेन करके बता दो। आप कहीं के बहुत बड़े सज्जादा नसीन हो तो, और वो नहीं बता सकते तो अक़ीदा वहदतुल वजूद और अक़ीदा वहदतुल शहूद पे जो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी और हजरत ख्वाजा बंदा नवाज़ गैसुद्दराज रहमतुल्लाह अलैह की जो आर्गूमेंट हुई थी, दोनों बुजुर्ग आर्गूमेंट करते थे अक़ीदा वहदतुल वजूद और वहदतुल शहूद पे। और फिर उसके बाद जब वक्त होता तो लोग दोनों बुजुर्ग एक दूसरे के पीछे नमाज भी पढ़ते थे, है ना। ये इख्तिलाफ ऐसा था, इख्तिलाफ हुस्न। आज का तो इख्तिलाफ ऐसा होता है कि वो कुफ्र तक पहुंचा देता है लोगों को, एक दूसरे को काफिर। मगर देखिए इन्हें कि बंदा नवाज सरकार और मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी यानी कि अक़ीदा वहदतुल वजूद एक से एक इब्न अरबी के मानने वाले खुसूसुल हुक्म लिख रहे हैं, है ना। और मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने वहदताबाद, कसरताबाद, रूहाबाद बनाया। ये ज़रा इसकी एक्सप्लेन करके बताओ नफीस साहब, है ना। अरे बुढ़े हो रहे हो, कमा खा रहे हो, पेट भर रहे हो, है ना, किचौचवी कहलाते हो, अशरफी जिलानी कहलाते हो, है ना। अभी भी बाज नहीं आ रहे हो, हमारे बुजुर्गों के बेटों को सता रहे हो, है ना। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि नफीस साहब ने जो किया हम इसकी कड़ी मजम्मत करते हैं ना।
इन्होंने पियादा लगाया है, रहबर बस्तवी तो पियादा था, असल तो काम इन्होंने ही बजाया है ना, क्योंकि इनको जो है तो इनकी पेट में अंगार पैदा हुई सैयद नफीस अशरफ को, है ना। और जो है तो मुझे मना किया गया कि भाई आप गाली वाली मत देना, इसलिए हम नहीं दे रहे हैं। मगर जो है जिस तरीके से मौलाना इंतखाब हुसैन कदीरी साहब थे ना सरकार कला के दौर में, इन्हें सरकार कला के हुर थे ना, उसी तरीके से लोग हमें कहा कि जैसे इंतखाब कदीरी थे वही काम आप कर रहे हो, है ना। ये अलग बात है, मौलाना इंतखाब हुसैन कदीरी की हम अदब करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, सरकार कला का खलीफा मानते हैं, मगर उनको सैयद नहीं मानते, है ना। इस सयादत वाले मसले में उनसे हमारी कंट्रोवर्सी है और वो रहेंगी। ना इंतखाब कदीरी को सैयद मानते हैं, ना अमीनुल कादरी को मानते हैं। या अमीनुल कादरी भी सैयद नहीं है, मेरी दूसरी वीडियो अभी बनाया हूँ, बड़ी वायरल हुई है। बहरहाल सैयद महमूद अशरफ अशरफीउल जिलानी अलहयातहू हाफिज़ुल्लाह ताला सज्जादा नसीम खानकाह आलिया अशरफिया हसनिया सरकार कला से हमारी तो सबसे पहले यही गुजारिश है कि जो आपका पुश्तनी मकान है मुख्तारुल मसाजिद के बाजू में, आप हजरत अदब के साथ मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि आप पहले इसका रिकन्स्ट्रक्शन कराइए। बड़ा मखदूस हो रहा है ये मकान, ये हमारे बुज़ुर्गों की यादगार है। और उर्स के मौके पर जो है तो हजरत खानवादे के लोगों को भी अब धक्का दिया जा रहा है। उसी उर्स में हजरत अली मियाँ के साहबजादे सलमान मियाँ को धक्का दिए सिक्योरिटी वालों ने, है ना। हमने फिर वो प्रोटेस्ट भी किया कि अरे भाई ये आले मुख्तार हैं, अली मियाँ के साहबजादे हैं, आप धक्का कैसे दे रहे हो इनको। सलमान मियाँ ने हमको मना करे जाने दो बाबू। फिर हम अंदर भी नहीं आए खरका पोसी की टीम, कहा कि भाई जबरी अभी 10 लोगों से झगड़ा करना पड़ेगा अंदर जाने के बाद। एक आके कहता है कि भाई मैं 2012 से यहाँ पे सिक्योरिटी का काम कर रहा हूँ, एक आके कहता है मैं 2009 से हूँ। हम जो है 1990 में तो मैं मुरीद हुआ था जो सरकार कला का, है ना। वो जो सरकार कला का आकर जो सरकार कला की सज्जादगी को देखे, शेख आज़म की सज्जादगी देखे, आपकी देख रहे हैं, हमारी ख्वाहिश है मोहम्मद मियाँ की सज्जादगी देखें हम, है ना। जो मोहम्मद मियाँ की सज्जादगी देखें। अब इसके अंदर हजरत मुरीदीन के ऊपर, गरीब मुरीदीन के ऊपर ख्याल कीजिए, है ना। इसी साल जो है तो मोहम्मद मियाँ सरकार ने जो है तो हमारे मालेगांव से बिलाल अशरफी साहब ने मुझे शिकायत की कि मोहम्मद मियाँ के पास गए कमरा लेने, तो मोहम्मद मियाँ ने कहा कि मैं कमरे की सिफारिश नहीं करूँगा। तो माज़अल्लाह नकले कुफ्र ना बाशाद एक मुरीद जो है महमूद मियाँ का खड़ा होकर बोल दिया वहीं पर कि ये कमरे की सिफारिश यहाँ नहीं करे तो हश्र के मैदान में क्या सिफारिश करेंगे। तो हजरत ये कड़वी हकीकतें हैं हजरत, तो ऐसा ना होने चाहिए। एक ज़माना था कि जब हम लोग जो हैं तो 1994 में मैं अतर अशरफी आसिफ मास्टर हम लोगों ने जो है तो परचम लेकर आए, अशरफी परचम, और हमने कहा महमूद मियाँ सरकार से कि हुजूर यही परचम से जो है तो उर्सों का आगाज़ होगा, और उसी से उर्सों का आगाज़ हुआ, है ना। और फिर जो है तो जब उसके अंदर मौलाना सैयद अहमद अशरफ हॉल जब ज़ेर तामीर था, जब वहाँ पे उर्स का वो होता था, फिर उसके बाद जो है तो क्या कहते हैं तकरीबन 2006 या 7 में आपने हजरत महमूद मियाँ ने बाहर लेकर आए, यानी जहाँ पे आप सर का पोशी होती है। नहीं तो उससे पहले तो मौलाना सैयद अहमद अशरफ हॉल में होती थी, उससे पहले हुजूर अशरफी मियाँ जो हैं तो खानका के अंदर ही किया करते थे। ये लोग इतना सताते थे अशरफी मियाँ को, ये जब गेट तामीर हुआ तो ये लोग गेट तामीर करने नहीं दिए। हुजूर अशरफी मियाँ अपने खानका के अंदर बंद कमरे में खरका पोशी करते थे। तो यही नफीस, ये फ़खरुद्दीन अशरफ, ये लोग जो है तो पुलिस में केस कंप्लेन, और जिस दिन पेशी रहती थी यानी कि आज 28 तारीख आज खरका पोशी है, उस दिन फैज़ाबाद कोर्ट में हुजूर सरकार कला के ऊपर ये लोग मुकदमा दर्ज कर दिया करते थे, है ना। आज इतनी मक्कारी हो रही है कि लोग अपने आप को हम सभी सरकार कला कह रहे हैं। ये बसखारी वाले इनमें के एक बुजुर्ग अपने आप को हम सभी सरकार कला कहलवा रहे हैं लोगों से। अरे कहाँ सरकार कला और कहाँ तुम लोग, हाँ। वो तो आले हसन में से हैं, है ना। सरकार आल सैयद मोहम्मद हसन सरकार कला अव्वल की ख़ानदान से आए। आप कहाँ से, हम सभी सरकार कला हो गए। आए आपके बाप दादाओं ने तो इनको मारा, तोड़ा, डंडा से मारा, हाँ, शेख आज़म को ज़ख्मी किया, और आप जो है तो इनको जो है तो आज आप इतना ज़्यादा ये है कि अब हम सभी सरकार कला कहलाने के उस पर आ गए। तो हुजूर अशरफी मियाँ
अपने हुजरे के अंदर जो है तो करते थे, तो ये लोग लाठी डंडा लेके आते थे बसखारी वाले मारने के लिए, है ना। यहाँ तक कि यानी कि इनको वो नहीं किया गया। यही नफीस अशरफ आप जो है तो हज़रत अब्दुल रज़ाक नूरुल रहमतुल्लाह अलैह की जो अहलिया हमारी पीरानी अम्मा का जो आस्थाना है, उसी पर जब आप जाएंगे तो सीधे हाथ पर हज़रत शाह शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह जो हज़रत अब्दुल रज़ाक नूरुल के पहले फर्जंद थे, जिनका 18 बरस की उम्र में जिनका इंतकाल हो गया था। सैयद शमसुद्दीन साहब का जो है तो 18 बरस की उम्र में इंतकाल हो गया था। उनके ऊपर आज भी नेम प्लेट लगी हुई है। वैसी सारी नेम प्लेटें जो है तो ऊपर यानी हज़रत अब्दुल रज़ाक नूरुल और हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के पहलू में जितने सज्जादगान के मज़ार हैं, सब के ऊपर नेम प्लेट लगी थी। यानी शाह हसन पे, शाह हुसैन पे, हज़रत हाजी चिराग जहाँ पे, हज़रत जाफ़र लाड पे, और यहाँ तक के यानी कि हज़रत नवाज़ असर यानी कि हज़रत सैयद नज़र अशरफ साहब तक का तमाम की नेम प्लेट लगी हुई थी। मगर जो तो बसखारी यानी कि फैज़ाबाद से कमीशन इंक्वायरी के लिए गाली बना रहा था, फैज़ाबाद से या इलाहाबाद हाई कोर्ट से। तो यही सैयद नफीस और फ़खरुद्दीन इन लोगों ने जो है तो रातों रात सारे नेम प्लेट हटा लिए, है ना। ये रातों रात ये लोग सारे नेम प्लेट हटवा लिए वहाँ से। और इनकी बेअदबी और गुस्ताखी की इंतहा ये है कि इन्होंने शाह हसन रहमतुल्लाह अलैह जो सज्जादा नसीन अव्वल थे, उनके आगे जो है अपने बाद के लोगों को दफन किया, है ना। इन्हें इतनी ज़्यादा इन लोगों को कितना बुग़्ज़ हो रहा है इनको ख़ानदान सरकार कलां से बसखारी वालों को। इससे अंदाज़ा लगाइए आप कि हमारे खानवादा सरकार कलां के ऊपर 8 सज्जादा नसीन दफन है। पहली बात तो ये नहीं कि हम ये चाहते हैं कि हुजूर कायद सैयद महमूद अशरफ साहब किबला जो हैं तो हम जैसे गरीब और फ़कीर लोगों का ख्याल रखें। हम गुलामान अशरफ गुलामान सरकार कलां हैं, और हमारी सुबह मुख्तार अशरफ, हमारी शाम मुख्तार अशरफ। मगर हुजूर वाला जो हैं तो फ़कीर शाम के मसले में जो कंट्रोवर्सी किए, ईमान अबू तालिब के मसले पे जो किए, इस तरीके की कंट्रोवर्सी तो खैर आप नहीं कर रहे हो। आपने तो अब खुद इन्हें नाज़बियत का चेहरा नोच के रखा है। मगर जो आए तो आपके मदरसे से ये नज़रुल बारी ये लोग जो हैं तो अक्सर यानी कि विवादित बयान दे रहे हैं। यानी अहले बैत के ख़िलाफ़ में अक्सर 12 इमाम 14 मासूमीन के ख़िलाफ़ में आपके यहाँ से बयान हो रहा है। एक वक्त होता हुजूर अशरफी में अगर हयात होते और ये बसखारी वाले ना सताते तो जिस तरीके से इमाम बारगाह और ताज़िया के चौचा शरीफ में है, देवा शरीफ में है, उसी तरीके से अलम और ताज़िया खानकाह अशरफिया हसनिया सरकार कलां में होती। हुजूर हम आपसे हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि जो जामिया अशरफ के अंदर जो हौज़ है, इसके अंदर गाज़ी अबुल फ़ज़ल अब्बास का अलम लगाइए आप, और एक इमाम बारगाह भी जो है तो खानकाह अशरफिया में होना चाहिए, जो आपकी यादगार रहे कि हुजूर महमूद मियाँ ने इसे तामीर किया था, है ना। ये बहुत ज़रूरी है मौलाइयों के लिए। सारे मौलाई आपसे आस उम्मीद लगाए हुए हैं और हम आपका एहतराम अदब इज़्ज़त करते हैं, और किसी को बोलने की हिम्मत नहीं होती। मगर अब यानी कि मामलात जब चले तो सब कुछ बोलना पड़ेगा, है ना, सारी बातें बोलना पड़ेंगी। तो बहरहाल हुजूर जिस मुकाम पर आप बैठे हुए हो, ये बहुत मेहनत और मुशक्क़त और मुश्किल से आया है ना। ये जो है तो इस मुकाम तक पहुंचना बड़ी मेहनत और मुशक्क़त की बात थी कि हमारे जिन्होंने तफसीर लिखी कंजुल ईमान की, मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी साहब, ये उर्स मैनेज करते थे खुद, यानी कि ख़ानदान के लोगों पे किसी पे भरोसा नहीं था। मुरादाबाद के लोग बहुत साथ देते थे, और जिस दिन उर्स की तारीख रहती थी सरकार कलां की, उसी दिन ये लोग जो है तो फैज़ाबाद कोर्ट में मुकदमा तारीख रखते थे, डेट रखते थे उसी दिन हेयरिंग की। ये नफीस फ़खरुद्दीन अशरफ ये लोग, है ना, इनके अंदर हिम्मत है नफीस में। तो जितनी ऊपर कब्रें हैं ना मखदूम पाक के ऊपर, जितनी सज्जादगान की कब्र है, सब के ऊपर नेम प्लेट लगाए, कौन सी कब्र किसकी है, हकीकत वाज़े हो जाएंगी, है ना। मीरातुल असरार के जो मुसन्निफ़ हैं शेख अब्दुल रहमान चिश्ती, इन्होंने भी इसके अंदर जो है तो खानवादा सरकार कलां के का हक अदा नहीं किया, जबकि मैं मीरातुल असरार का बहुत इन्हें रेफरेंस देता हूँ। मगर इन्होंने भी जो है तो खानवादा या सरकार कलां को लेकर डंडी मारी, है ना, डंडी मार के काम किए इन्होंने भी। तो बहरहाल जो है हज़रत गौसी मियाँ की बड़ी कुर्बानी रही इसमें, है ना।
गौसी मियाँ की बहुत बड़ी कुर्बानी रही, जिसकी वजह से यानी कि आज यानी कि जुलूस गौसिया और जुलूस मोहम्मदी निकल रहा है। सैयद अली मियाँ की कुर्बानी रही, उनकी वजह से यानी जुलूस ईद मिलाद और जुलूस गौसिया और जुलूस मोहम्मदी निकल रहा है। आज उनके लड़के सलमान मियाँ को धक्का दिया जा रहा है। अजीब बात है, अंधेर हो रही है। जब सलमान मियाँ को धक्का दिया जा रहा है तो हम लोग तो कुत्ते ऐरे गहरे हैं, है ना, कमज़ात लोग हैं हम, है ना। एहसन मियाँ कहते हैं हम लोग जुलाए हैं जात के। एहसन मियाँ कहते हैं कि जुला अगर 2 रकअत नमाज पढ़ ले तो फिर इंतज़ार करते हैं कि वही आ जाएंगी। हम तो उस ख़ानदान से बिलोंग रखते हैं, है ना, जुलाए हैं जात के हम लोग। तो बहरहाल जो है, जब जुलाओं के साथ में ऐसा हो रहा है तो जो जुलाओं की क्या औकात है जब सलमान मियाँ के साथ ख़ानदान वालों के साथ हो रहा है। और दूसरे घुस रहे हैं उसमें फ़ोटो खिंचाने के लिए, वीडियो में आने के लिए। जो लोग जो हैं तो महमूद मियाँ को और ख़ानदान सरकार कला को, जिन लोगों ने कभी 1 इंच रेती नहीं दी, 1 इंच खड़ी नहीं लगाई ख़ानदान सरकार कला की खानका के कंस्ट्रक्शन में, है ना, कमाए खाए बड़ा बहुत रहा मगर किसी ने दिया नहीं। सबके नाम जानते हैं, बोले तो एक अलग तमाशा अलग विवाद हो तो बोलना ही नहीं चाहता। तो बहरहाल जो है हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह, फिर उसके बाद जो है तो सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल्लैन, फिर हज़रत शाह हसन से लेके हज़रत नज़र अशरफ सज्जादा नसीन तक इतने मज़ारात जो हैं तो ऊपर हैं जामिया के इसमें दरगाह शरीफ में। अब मैं एक पिछली वीडियो में मैंने ये बात बोल दी थी कि मगरिब और इशा की नमाज जो है तो मस्जिद औलिया में नहीं होती ऊपर, है ना। मेरे से नहीं थोड़ा मुकाबला हो गया था बोलने में। अब बोलता है आदमी, बोलना भी तो सबके ज़रूरी थोड़ी हर आदमी बोल पाए, है ना। लोग तो हाथ से उंगली चलाते हैं, ये तो ज़ुबान है चल रही है अली की, इसको में मीसम मिजाज हैं इसलिए ज़ुबान चलाते हैं, हमारी ज़ुबान चल रही है। तो हमने ये कह दिया था कि भाई मगरिब और इशा दोनों के दरमियान में जो है दोनों नमाज़ें नहीं होती हैं वहाँ, तो 3 वक्तों की होती है। हमने ऐसा कहा था, ऐसा नहीं है, सिर्फ वो इशा की नमाज ऊपर नहीं होती है, बाकी तमाम वक्तों की नमाज होती है। मगर अभी गलती ये कर रहे हैं ये लोग कि उर्स के मौके पे रात में 12 बजे तक दरगाह खुली रख रहे हैं। मैंने खादिम से कहा कि भाई मगरिब बाद तो बारगाह बंद हो जाती है ना। वो बोले कमाने का टेम है, बोले अभी नहीं कमाएंगे तो कब कमाएंगे। खादिम ने खुद मुझे कहा भाई अभी कमाने का टेम है, अभी नहीं कमाएंगे तो कब कमाएंगे। हर चीज़ का ठेका, चादर का ठेका, वहाँ पर पैसा डालते, बोले मखदूम बाबा की मुरादी चौखट है, यहाँ पैसा डालो, है ना। उसके बाद फिर खादिम अंदर गए, अगर बेगर खादिम के आदमी चला जाए तो बोलते हैं यहाँ चलो नाम लिखाओ, यहाँ नाम लिखा। फिर आगे जो है तो सिराने की तरफ ले आके लोगों को दुआ कर रहे हैं। बेअदबी है ये तो, सिराने की तरफ मखदूम पाक के ले जाके दुआ कराना, ये तो सबसे बड़ी बेअदबी है ना। बेअदबी की बातें हैं, बेअदबी है, गुस्ताखी है। तो ये जो है तो ये गलत करते हैं खद्दाम। अब जब एक जगह आदमी पैसा दे दे तो कहते हैं कि दुई मजा आ रहा है, एका भी डालो, उधर भी डलवाते इधर भी डलवाते हैं। ये इनकी दादागिरी गुंडागर्दी चल रही है वहाँ पे, है ना। और ये जितने खादिम हैं इसमें चंद एक को छोड़े तो सब रात में शराब पीते हैं, गांजा पीते हैं। तो इनकी तरफ तो कभी नहीं बोलते हैं नफीस वफीस, है ना, ये कभी बोलते नहीं हैं उनको ये भाई इनको चंदा मत दो, इनको पैसा मत दो, वहाँ नजराने पे बैंड लगाओ या क्या। बल्कि एक दरवाज़ा होना तो ये चाहिए कि उर्स में इतनी भीड़ हो जाती है कि एक दरवाज़ा मगरिबी सिमत से निकाला जाए। जैसे ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने में एक दरवाज़ा जो है तो निकाला गया मगरिबी सिमत से, वैसे एक निकाला जाए कि ज़ायरीन इधर से आए और मगरिबी सिमत से बाहर निकल जाएँ। खान दरगाह के अंदर थोड़ा सा रिकन्स्ट्रक्शन किया जाए, है ना। इतनी गर्दी इतनी भीड़ रहती है कि बूढ़ा आदमी जा ही नहीं पाए। सरकार वारिस पाक का रोज़ा देखो, उर्स के मौके पर लोग जो हैं तो छोटा बच्चा लेके एक औरत वहाँ तक चली जाती है, इतनी आसानी होती है। आपके यहाँ तो पूरा उलमाई अंदाज आ गया, मौलवियत आ गई, है ना। कि चौसा शरीफ में ना कहीं पे अल्लाहू की सदा बुलंद होती है, ना कहाँ ही पे ज़िक्र फ़िक्र, सारे मौलवी भरे पड़े हैं, है ना। एक सवाल अगर किसी से पूछ लें भाई वज़ू का तरीक़ा कैसा है, ये ऐसा सुक्का रह गया तो क्या, अगर ये भूल गए तो क्या, एक जिससे पूछते रहेंगे उसे छोड़ के दूसरा मौलवी आगे बताने लग जाएंगे। रुको मैं बताता हूँ, इसका ऐसा मसले का हल ये है, ये इसका वो है। ये 2 अंगूठी पहने तो अभी इस पर फतवा देने वाले कई अशरफी मुफ्ती आ जाएंगे। ये कड़ा पहनने वाले ये पहनना हराम है, नाजायज़ है। इन्हीं से एक सवाल अगर मैं कर लूँ कि 2 मोहम्मद 2 अली, अल्लाह मेरे 4, कलमा कल की छोकरी,
उसकी माँ का मैं यार, तो सब इनकी नानी गुम हो जाएंगी। ये कईयों किताब खंगालेंगे तो नहीं निकाल पाएंगे इसका मानी, है ना। फिर से बता देता हूँ, 2 मोहम्मद 2 अली, अल्लाह मेरे 4। ये मार्फत का सवाल है ना, चाय बिस्किट का नहीं, मार्फत का सवाल है। और शरीयत के दायरे में रहते हुए मार्फत का ये सवाल है। 2 मोहम्मद 2 अली, अल्लाह मेरे 4, कलमा कल की छोकरी, उसकी माँ का मैं यार, है ना। तो बहरहाल जो है हुजूर महमूद मियाँ सरकार से हमारी गुजारिश है कि अपने ख़ानदान के लोगों का ध्यान दे। सलमान मियाँ वगैरह खानवादे के लोगों को अलग से प्रोटोकॉल मिले, और ये जो काली टी शर्ट वाले हैं इन लोगों को हटाया जाए। ये सब गुंडागर्दी कर रहे हैं, है ना। इनको हटाया जाए, सही ढंग से जो है तो उर्स का एहतमाम किया जाए, यानी कि फ़ुकरा रहें उसके अंदर, रफ़ाई फ़ुकरा रहें, रातिब वाले रहें, सैनाई वाले रहें, कव्वाल रहें। इस तरीके से इन्हें बुज़ुर्गों का होता है। मौलवियों को जो है तो मौलवी हमेशा आपके साथ में गद्दारी करते ही आए हैं, फिर इन मौलवियों को आप क्यों घुसा के रखे हो, अपने करीब में करके रखे हो। ये मौलवी बहरहाल धोखेबाज होता है और धोखा ही देता रहेगा आपको, है ना। तो हमारे ख़ानदान की जो है तो हज़रत अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल्लैन से लेके शाह नज़र अशरफ तक की जो है तो हम 8 सज्जादा नसीन ऊपर दफन है। मेरी अगली वीडियो में, पिछली वीडियो में मैंने वो डाला भी हूँ, है ना। ये मुजावरों की बदमाशी तो है ही वहाँ पर। और फिर उसके बाद जो है हज़रत नज़र अशरफ साहब जो थे तो ये लावलद थे, तो इन्होंने अपने अपने सगे भतीजे को, हज़रत नज़र अशरफ साहब ने अपने सगे भाई के बेटे सैयद नवाज अशरफ अशरफी जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को अपना जानसीन, खलीफा, मुरीद बनाया, फिर खलीफा बनाया और सज्जादा नसीन बनाया। मगर इन लोगों ने जो है तो सैयद नज़र अशरफ साहब को दफन होने के लिए इन लोगों ने वो इनकार करवाया कि भाई आप यहाँ ला के उनका जनाजा दफन नहीं कर सकते, है ना। 2 ही जनाजे देखा हूँ जिसको दफन होने के लिए इन्हें वो किया गया है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम का जनाजा, एक सैयद नज़र अशरफ साहब का जनाजा, है ना। मगर इमाम हसन का जनाजा तो ले जाके जन्नतुल बकी में दफन किया गया, मगर सैयद नज़र अशरफ साहब का जनाजा जो है रात के अंधेरे में ले जाके नीर के रास्ते से रात के अंधेरे में ले जाके दरगाह में दफन किया गया। अब जब ये दफन हो गया तो खुद यानी अब कब्र खोदने में इनके ही अंदर इख्तिलाफ पैदा हो गया। बहरहाल तो सैयदी थे ना, ये तो बनु उमैया वाले तो नहीं थे कि कब्र खोद लेंगे, माविया परस्तों तो थे नहीं ये कब्र खोदेंगे। तो बहरहाल कब्र खोदने में खुद इनका यानी इख्तिलाफ हो गया, तो कब्रों की ज़ायद मिट्टी उठा ली है। तो आज भी सैयद नज़र अशरफ की जो कब्र है वो पस्त है, यानी कि पस्त तो नहीं बोलना चाहिए, मेरे बुजुर्ग हैं, यानी कि छोटी सी ऐसा दिखती है इस तरीके से। तो और इन लोगों की इतनी गुंडागर्दी थी, नफीस की, ये तुम्हारा मोयुद्दीन इनके बाप दादा की, कि हज़रत नज़र अशरफ साहब रहमतुल्लाह अलैह की जो अहलिया थी मखदूमा साहिबा, ये रातों रात जायज़ शरीफ से थी ये, तो रातों रात खरका लेकर जो है जो तबरुकात थे, यानी जो आज मुख्तारुल मसाजिद में रखे हैं, ये सारे तबरुकात लेके रातों रात अंधेरे में, उस वक्त तो क्या मामला रहा होगा, क्या आलम रहा होगा उस वक्त, तो उन्होंने जो है तो वहाँ से तमाम तबरुकात लेके फ़रार इख्तियार की और जाइश में जाके पना ली, है ना। मैं जो हूँ तो तकरीबन 1990 के करीब जो है तो मैं किचौसा गया था, तो लाइट नहीं थी, रास्ते में एक नाला पड़ता था, उस नाले के अंदर साइकिल वाले रिक्शे से उतर के उस तरफ जाना पड़ता था। यानी कि हमारे टाइम में ये हालत थी। आज तो खैर लाइट है, बिजली है, मगर उस वक्त तो रात में लाइट नहीं रहती थी। हम जब गए पहली मरतबा मिलने सरकार कलां से, तो हुजूर जो है तो जो बत्ती होती है हमारे यहाँ गैस बत्ती कहते थे, उसकी रोशनी में अनवार मियाँ और हुजूर उसकी रोशनी में अनवार मियाँ और सरकार कलां बैठे हुए थे, यानी कि इस तरीके के यानी कि मामलात थे। तो बहरहाल जो है तो क्या कहते हैं, उन्होंने किस तरीके से अपने आप को लेके गए होंगे ये तो अल्लाह ही यानी जानता है, उनकी हिम्मत को सलाम, है ना। फिर हज़रत शाहनवाज अशरफ से लेके जो है तो हज़रत सैयद मनसब अशरफ तक जो है तो किसी को जो है तो दरगाह शरीफ में जाके मरासी में सज्जादगी अदा करने नहीं दिया गया। मगर जो है ये सारे बुज़ुर्गों के अंदर जो है तो दर्जा बदर्जा ख़ानदान के अंदर जो है तो मुरीद भी होते रहे, खिलाफत भी देते रहे और अपना जानसीन भी बनाते रहे, है ना। यानी दरगाह में तो नहीं जाने दिया गया, मगर यानी जानसीनी बहरहाल यानी कि हज़रत मनसब अली सरकार तक का जो है हज़रत नवाज अशरफ से दर्जा बदर्जा यानी उनकी औलादों में आती रही। हज़रत मनसब अली जो थे तो इन्हें कुछ बचपन से इनको कोई बीमारी थी,
اس کی وجہ سے جو ہے تو انہوں نے جو ہے تو اپنے حقیقی بھتیجے یعنی ان کے چچا کے ان کے بھائی کے بیٹے تھے حاجی اشرف حسین مرشد پاک رحمۃ اللہ علیہ، ان کو اپنا جانشین و سجادہ نشین بنایا۔ حاجی اشرف حسین رحمۃ اللہ علیہ صرف ایک برس سجادہ نشین رہے اور دیکھے کہ بھائی ایسے معاملات ہیں، تو آپ نے جو ہیں تو ایک برس کے بعد ہی اپنے چھوٹے بھائی سید شاہ محمد علی حسین اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کو منصب سجادگی دے دی۔ یعنی حضور اشرفی میاں حاجی اشرف حسین رحمۃ اللہ علیہ کے سگے بھائی بھی تھے، مرید بھی تھے، خلیفہ بھی تھے، جانشین بھی تھے۔ حضور اعلیٰ حضرت سید شاہ محمد علی حسین اشرفی میاں جو تھے تو حاجی اشرف حسین رحمۃ اللہ علیہ کے سگے بھائی بھی تھے، ہے نا، اور جو ہے تو مرید بھی تھے، خلیفہ بھی تھے اور آپ کے جانشین بھی تھے۔ اور ہماری زبان میں کہوں میں تو حضور اشرفی میاں بڑے دھارکاری آدمی تھے، ہے نا، بڑے جہاں دیدہ آدمی تھے۔ آپ نے دنیا کا بہت سفر کیا، بہت سارے بزرگوں سے خلافت اجازت حاصل کی، دعائے حیدری کا چلہ کیا، دعائے حزب البحر کا کیا، دعائے بسمک کا کیا۔ مخدوم پاک کے آستانے پہ ایک برس تک آپ چلہ کرتے رہے کہ یہ بسخاری کی چوچا کے لوگ خود کہنے لگے کہ کوئی خاندان میں بہت دن کے بعد ایسا ولی پیدا ہوا ہے۔ حضور اشرفی میاں کی وہ شان رہی، پکے مولائی بزرگوں، پکے تعزیہ دار، پکے محب اہل بیت۔ یہ کہتے ہیں کہ میں شیعہ نیم ہوں، آج لوگ ہم کو نیم رافضی کہتے ہیں نا، حضور اشرفی میاں تو جبھی کہہ کے گئے حب علی سینہ اس کا وہ شعر ہے نا کہ حب علی میرے سینے کے اندر ہے اور سیاہ نیم سنیے بے کی نام۔ اب ہم کو لوگ نیم رافضی کہتے ہیں تو کہو، ارے حضور اشرفی میاں تو خود اپنے آپ کو کہہ کے گئے۔ محدث صاحب نے کہا کہ تشیع نام گر باشد ولائے آل مولا را خدا بینت خدا دانم منم شیعہ۔ تو بہرحال جو ہے تو حضور اشرفی میاں کا جو عقیدہ تھا کہ آپ جو ہے تو خلافت ظاہری میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت شیخین کو اول مانتے تھے، ہے نا، مگر جو ہے تو آپ نے کہا کہ نبی کے یار اور انصار سب افضل ہیں عالم میں، سارے افضل ہیں، مگر مثل علی کوئی برادر ہو نہیں سکتا۔ تو افضلیت میں بہرحال جو ہے پیر طریقت میں، پیر سجرہ میں مولا علی ہیں اور یہی ہم مانتے ہیں۔ خود حضور اشرفی میاں کہتے ہیں جس کا مولا ہوا خاتم الانبیاء ان کے مولا ہیں بے شک علی مرتضیٰ۔ اب جن کا مولا خاتم الانبیاء ہے تو خاتم الانبیاء آدم کے بھی مولا ہیں، حضرت ابوبکر کے بھی مولا ہیں، حضرت عمر کے بھی مولا ہیں، حضرت عثمان کے بھی مولا ہیں۔ تو حضور اشرفی میاں کہہ رہے ہیں جن کا مولا ہوا خاتم الانبیاء ان کے مولا ہیں بے شک علی مرتضیٰ۔ لفظ من کنت سے یہ معمہ کھلا، میرا مولا علی، میرا مولا علی۔ حضور اشرفی میاں نے چلہ کیا تھا جہاں، اس چلے خانے کو ان بسخاری والوں نے توڑ ڈالا، شہید کیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے تو حضور اشرفی میاں کے دور میں بھی مقدمات چلتے رہے۔ پھر حضور اشرفی میاں نے جو تبرکات حضرت شاہ نظر اشرف رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ مخدومہ صاحبہ لے کر جائز شریف چلی گئی تھی، جائز شریف میں بھی ایک بارگاہ تھی نا ہماری، ایکچوئل میں ایسا تھا کہ حضرت عبدالرزاق نور العین رحمۃ اللہ علیہ کے 5 صاحبزادے تھے، ایک حضرت سید شمس الدین اشرف، ہے نا، یہ گنگا ندی، گنگا ہی ہے نا، گنگا ندی کے پاس سے ہماری ٹرین گزر گئی، اور ایک تھے حضرت سید شمس الدین اشرف جن کا جو ہے تو حضرت عبدالرزاق نور العین رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ کا جہاں آستانہ، ان کے بازو میں حضرت سید شمس الدین اشرف رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ ہے، نیر کے کنارے عدالت کے بازو میں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے تو کیا کہتے ہیں حضرت شاہ حسن رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ حسین کو ولایت جونپور ملی تھی، اور انہوں نے جونپور کی ولایت یعنی جونپور کا آب و ہوا یا ان کو راس نہیں آیا یا جو بھی تھا ان کو وہاں جونپور میں اچھا نہیں لگا، یہ واپس آ گئے۔ تو حضرت شاہ حسن رحمۃ اللہ علیہ 28 کو سجادگی کرتے تھے، اور حضرت شاہ حسین جو ہے تو 27 کو کرتے تھے، اور حضرت شاہ احمد جو تھے ان کے خاندان کے لوگ جائز میں چلے گئے، وہ لوگ آج بھی انہیں کلیم میاں، نعیم میاں وغیرہ، یعنی وہ لوگ آج بھی جو ہے تو وہاں پہ عرس کرتے ہیں، ہے نا، سجادہ نشینی وہاں ہیں۔ اور حضرت شاہ فرید رحمۃ اللہ علیہ جو تھے تو ان کی شاید ان کا مزار یہاں دیوا شریف کے آس پاس میں بارہ بنکی میں پڑتا، ان کی بیٹیوں کی نسل رہی اس طریقے کا رہا۔ اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ایک اولاد لاولد تھی، ایک کا تو انتقال ہو گیا بچپن میں، اور ایک اولاد لاولد تھی، تو کون سی اولاد لاولد تھی بتاؤ آپ؟
नफीस साहब बताइए कौन सी औलाद हजरत की लावलत थी? शाह फरीद के अलावा कौन थी? कौन सी औलाद थी जो लावलत थी? तुम खुद फंस जाएंगे, है ना। खुद तुम्हारे घर की रिश्तेदारी निकलेंगी ख़ानदान सरकार कला से, है ना। ये तो तुम तो जल रहे हो, आउट रहे हो महमूद मियाँ की उसके अंदर जो तो आप ये बातें बोल रहे हो, है ना। तो ये 3 खानकाएँ तो बहरहाल आज भी हमारी आबाद हैं। खानकाह अशरफिया सनिया सरकार कला, खानकाह हुसैनिया छोटी सरकार वाली, और फिर जो है तो खानकाह जायज़ शरीफ की, और शाह फरीद रहमतुल्लाह अलैह वाली भी उनके नवासों की या उनकी बेटियों की कुछ औलाद हैं, कुछ है, मगर इन्हें मेरे को उसकी पक्की जानकारी नहीं है। तो बहरहाल जो है तो हुजूर अशरफी मियाँ ने जो है तो दोबारा जो है तो खानका तामीर की, बल्कि जो खानकाह आलिया अशरफिया सनिया सरकार कला जो है इसके ऊपर पुराने डॉक्यूमेंट में आज भी हाजी अशरफ हुसैन रहमतुल्लाह अलैह का नाम है ना। ये प्रॉपर्टी थी हुजूर हाजी अशरफ हुसैन की, मगर वो इतनी सियासत, इतनी ज़्यादा दादागिरी, गुंडागर्दी, वो सब तो वो मिजाज के आदमी नहीं थे हाजी अशरफ हुसैन रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने साली हुसैन अशरफी मियाँ को दे दिया, और हुजूर अशरफी मियाँ हर फन मौला थे, है ना, हर फन मौला थे। तो आपने कोर्ट कचहरी भी देखी, मौलवियत भी देखी, पीरी मुरीदी भी करी, सब किया आपने, है ना। तो बहरहाल हुजूर अशरफी मियाँ ने इस सजर को लगाया। हुजूर सरकार कला पे भी इन लोगों ने जो है तो जब आपकी पालकी आती थी तो तकलीफ़ देते थे ये लोग, है ना। ये सारी बातें तो इन्हें बताएंगे लोग, यानी कि ये कह रहे हैं बस खाली के हिंदू से पूछ लो, मुसलमान से पूछ लो। अरे तुम जो है हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई से पूछ लो, ज़रा तारीख से भी पूछ लो। ये क्यों नहीं कहते नफीस साहब? तारीख से भी पूछ लो, है ना, हिस्ट्री से भी पूछ लो कि हिस्ट्री क्या कहती है ना। शासन का मज़ार ऊपर क्या किस क्या वजह से है? सारे नेम प्लेट लगा दो, तो जो तुम्हारे बाप दादा ने तोड़े हैं नेम प्लेट, वो नेम प्लेट को लगाओ, फिर आपको मालूम पड़ेगा क्या हकीकत है, क्या अफसाना है ना, क्या हकीकत है, क्या अफसाना है, मालूम पड़ेगा। हजरत सैयद शाह मोहम्मद अली हुसैन अशरफी मियाँ जो थे तो इनके साहबजादे मौलाना सैयद अहमद अशरफ रहमतुल्लाह अलैह ये वली अहद रहे, मगर इनका जो है तो ताउन प्लेग की वजह से आपका पर्दा हो गया। इसलिए जो है तो हुजूर सरकार कला सैयद मोहम्मद मुख्तार अशरफ को हुजूर अशरफी मियाँ ने जो है तो अपना जानासीन बनाया, और हुजूर अशरफी मियाँ के जो छोटे साहबजादे थे सैयद मुस्तफ़ा अशरफ, वो हुजूर सरकार कला के चचा भी थे और ससुर भी थे, है ना, चचा भी थे, ससुर भी थे, है ना। और सैयद मुस्तफ़ा अशरफ साहब रहमतुल्लाह अलैह जो है वो भी मौलाना सैयद अहमद अशरफ के खलीफा थे, और मुहद्दिस आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह भी मौलाना सैयद अहमद अशरफ के खलीफा थे, है ना। ये वाली बात रही। फिर उसके बाद जो है तो जब हुजूर सरकार कला बैठे, तो जब पार्टीशन हुआ तो हुजूर सरकार कला माइग्रेशन कर गए थे यहाँ से, मगर उनकी वालदा ने कहा कि बाबू दादा तुम्हारे बोलते थे कि मेरा पोता जो है तो खानका बनाएगा, इस जगह को फिर से हरा भरा करेगा, मदरसा बनाएगा। तो फिर हुजूर सरकार कला वापस आए, है ना। हुजूर सरकार कला तो सब छोड़ छाड़ के चले गए थे, माइग्रेशन कर गए थे, इन लोगों ने इतना सताया था। फिर यहाँ आने के बाद मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत ज़्यादा उनकी खिदमत का सिला रहा। इन्हें जो आज उर्स इतनी धूम से हो रहा है, ये सारा मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी का तरतीब दिया हुआ है। और आज भी मुरादाबाद और क्या कहते हैं मुबारकपुर के जो मुरीदीन हैं वही लोग उर्स में पेश रहते हैं। कि बाकी जितने बाहर से आए हैं पैसे वाले 4 दिन के सुल्तान, ये तो 2-4 दिन से अभी फिर रहे हैं ना, ये तो 2-4 दिन से फिर रहे हैं। बाकी इन्हें मुरादाबाद वालों की बहुत कुर्बानी रही इसके अंदर। हुजूर सरकार कला एक तवील अरसे तक का सज्जादा नसीन रहे, और इतने तवील अरसे तक वली अहद सिर्फ इजहार मियाँ रहे, है ना। इतना तवील अरसा कोई वली अहद नहीं रहा जितना तवील अरसा इजहार मियाँ वली अहद रहे। फिर आप सज्जादा नसीन हुए, है ना। आपकी भी सज्जादगी के दौर को देखा हमने, और हजरत जो तो हमसे बहुत करीब कुर्बत रखते थे, मगर कुछ हमारे लोग थे जो है तो हजरत के हमारे बारे में कान भरे, हमें कहा कि ये शिया है, राबजी है, फलाना है। तो हजरत हमको खिलाफत देते थे, तो हजरत ये लोगों ने रुकवाया था। आज उन सब के हाल बुरे हैं, सबकी हालत ख़राब है इनकी, है ना, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो है तो डायरे के हुजूर सैयद एहसन अशरफ साहब किबला अशरफी जिलानी से सरकार कला के आस्थाने में सिलसिला अशरफिया की खिलाफत मिली, खिलाफत और इजाज़त मिली। और इनके अलावा मैं तो कहीं भी जाता हूँ तो हुजूर सरकार कला का मुरीद हूँ, मैं यही कहता हूँ।
इसके अलावा जो है तो सिलसिला मदारिया से भी मुझे खिलाफत है, सिलसिला साबरिया से भी मुझे खिलाफत है ना, सिलसिला वारसिया से भी मुझे खिलाफत है, ख़ानदान आलिया, चिश्तिया, मिर्ज़ाइया, हज़रत ख्वाजा सुलेमान तूसवी रहमतुल्लाह अलैह वाला जो सिलसिला पीर पठान मिर्ज़ा सरदार बेग साहब क़िबला सुम्मा बल्खी हैदराबादी, उस सिलसिले से भी मुझे खिलाफत इजाज़त आई। ख़ानदान आलिया, अबुललाइया, जहांगीरिया, हसनिया से भी मुझे खिलाफत इजाज़त आई, है ना। बल्कि सिलसिला साबरिया की तो 2 तुर्कों से मुझे खिलाफत आई। अभी जो शाह अली बाबा जो अभी सज्जादा नसीन है, इनके वालिद साहब थे हज़रत शाह मंसूर रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने जिनको अपना पहला खलीफा बनाया था हज़रत अबुल कलाम साबरी साहब, उन्होंने जब मुझे देखा तो कहा कि सूफ़ी जी मैंने अभी तक किसी को अपना खलीफा नहीं बनाया है और मैं मंसूर मियाँ का पहला खलीफा, मंसूर मियाँ साबरी कुद्दूसी नुमानी का पहला खलीफा हूँ। और आपने जो है तो गंगो शरीफ के सज्जादा नसीन से अर्ज़ किया कि आपने तो सूफ़ी जी को खिलाफत इजाज़त दी, हालांकि वो खिलाफत इजाज़त मखदूम साबिर कलियर के हुक्म से थी। खुद जिन्हें साहिब सज्जादा ने इकरार किया कि भाई मैं ज़ाहिरी दे रहा हूँ, बातनी तौर पे तो शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही ने इनको अता किए थे। 2018 का वाक़या है ना, पहला कोविड का जो हुआ था उससे पहले उस टाइम की बात। फिर जो है तो हज़रत अबुल कलाम जो मंसूर मियाँ के पहले खलीफा थे, उन्होंने मुझे सिलसिला साबरिया की सबसे पहली खिलाफत मुझे दी। तो खिलाफतों की कमी नहीं, अगर 1-2 जगह की कोई चीज़ करवाने को भी आए तो कहाँ की करवा पाएगा, करवा भी नहीं पाएगा, है ना। जो है तो ख़ानदान अबुललाइया जहांगीरिया की भी रही, इसलिए हम डंके की चोट पे बोलते ही हैं, इसलिए हमारा कोई कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, है ना। खुद हमारे घर ख़ानदान के लोग हमारे मुखालिफ हैं, है ना। अपने आप को अशरफी कहते हैं, है पक्के नाज़बी, पक्के नाज़बी हैं ये, है ना। तो बहरहाल जो है तो बहरहाल जो है तो खानका अशरफिया आज जो है तो इतनी धूम से चल रही है, खानका अशरफिया सनिया सरकार कला, कि जो इनका जो ग्राउंड और कंपाउंड था ना, वहाँ पर तो पाँव रखने की जगह भी नहीं है। छोटी सी जगह में 2 गुंटे की जगह में जो है तो ये सारे सज्जादा नसीन खड़े होते हैं। और ये जो हैं तो इस मुट्ठी को बंद रहने दीजिए। ये जितने 25, 26, 27 के जितने सज्जादा नसीन है ना, जो खरका पोशी कर रहे हैं, इस मुट्ठी को बंद रहने दीजिए, नहीं तो कभी ये खुली तो बड़ा ख़राब मामला होगा, है ना। क्योंकि तुम लोगों ने बहुत सताया हुजूर अशरफी मियाँ को, और मैं इस दरबार का सच्चा कुत्ता हूँ। और कुत्ता जो है तो चोर को देख के भूकता है, और चोर का भूकना कुत्ते को अच्छा नहीं लगता है। तो हमें भूकने मत लगा, तो बहुत बुरा भूकेंगे हम, है ना, बहुत बुरा भूकेंगे हम महमूद मियाँ सरकार रहें या फिर आगे मोहम्मद मियाँ रहें, हम अपनी गर्दन का नजराना पेश करने के लिए तैयार हैं इन बुज़ुर्गों के लिए, है ना। जो भी रहे साहिब सज्जादा सरकार कला की गादी पे जो भी बैठे हुए, वो हमारे सर का ताज है, हम उनकी सज्जादगी का एहतराम करते हैं, है ना। बिला शर्त बिला उससे हम वो करते हैं, है ना, हर हालत में हम उनको वो करते हैं। और जो है ये नफीस ने जो बयान दिया, इसकी सख्त से सख्त हम मजम्मत करते हैं, और आइंदा ऐसा बयान ना देना, नहीं तो जो हमें अभी कसम खिलाई गई है कि गाली गलौज ना करना, इसका उल्टा भी हो जाएगा। कसम तोड़ते भी आता है हमको, है ना। सिर्फ मैंने कहा ना कि साकिया शराब से तोबा तोबा, मैंने दुनिया को बताने को कसम खाई है, तो सिर्फ दुनिया को बताने के लिए जो था हम अभी गाली गलौज नहीं कर रहे हैं। नहीं तो तुम्हारे को उसी टोन में अभी बात करते थे, है ना, उसी टोन में बात करते थे। आप जो सज्जादा नसीन अपने आप को जिस दरगाह का बोल रहे हैं ना, तो बहुत ख़राब जुमला बोलता था तुम्हारे को, सो भी नहीं पाते थे 2-4 दिन तक का, है ना। तो याद रखना, और तुम हमारा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। महमूद मियाँ जो हैं तो आज पूरी दुनिया जानती है कचौचे के सज्जादा नसीन है। खुद तुम्हारे यहाँ के कितने बसखारी के लोग उनको स्टेज पे बोलते हैं कि ये सज्जादा नसीन है ना। तुम्हारे यहाँ के खुद ही कितने लोग यहाँ आते हैं, यहाँ पे खानवादा हसनिया सरकारी कला के लोगों के आगे पीछे घूमते रहते हैं। बसखारी के नाम से तो कोई खिचौचे को कोई जानता भी नहीं है, दरगाह को सब लोग खिचौचे के नाम से जानते हैं, है ना। तो खिचौचा ही असल है, तो खिचौचे के ही सज्जादा नसीन असल है। और होना तो ये चाहिए कि 28 की जो सज्जादगी है, जब खरका पोशी करे महमूद मियाँ, उसके बाद बाकायदा पूरे प्रोटोकॉल के साथ में आप जाएं दरगाह में, सूरह फातिहा 3 मरतबा कुल अल्लाह पढ़ें, फिर वापस आएँ और फिर दुआए
हिजरा खानी और दुआए खैर हो, इस तरीके का मामला होना चाहिए। अगर मुहीउद्दीन का सीना बड़ा है तो फिर यानी वसी कल्बी इस तरीके से करो, जो तुम्हारे बाप दादा ने गलती की है अब उसे भुला दो, है ना। तुम्हारे से अच्छा तो वो पॉप जॉन पॉल था, जिसने जो है तो सिलीबी जंगों के मामले में जो है तो जब ईरान गया तो उसने जो है तो आयतुल्ला खामनाई के सामने कहा कि जो सिलीबी जंगें मुसलमानों के और हमारे दरमियान में हुई है, हमें चाहिए कि हम एक दूसरे से जो हमारे बुज़ुर्गों से गलतियाँ होगी उसकी माफ़ी मांग लें हम एक दूसरे से, है ना। तो होना तो ये चाहिए कि आप वसी कल्ब करके सैयद मुहीउद्दीन अशरफ साहब आप मुतवल्ली हो, सज्जादा नसीन हो। आपके साथ भी फ्रॉड हुआ, बचपन से फ्रॉड हुआ आपके साथ में, है ना। अब वो सारे फ्रॉड क्यों खोलने लगवा रहे हो? तो आप वसी कल्बी कीजिए। सिर्फ आप 27 के सज्जादे हो, 28 का तो डबल खरका पहना जा रहा है, ये खुद गलत है। अवैस करनी का खरका बताया जा रहा है, झूठ बात है ये, है ना। अवैस करनी का खरका आया ही नहीं मखदूम पाक तक का, है ना। बाकी जितने सज्जादा नसीन है किसके पास कहाँ से आया सब मुझे मालूम है। एक सज्जादे साहब का तो ये नहीं कि अगर बायोडाटा खोलूँ तो मालूम नहीं किधर ये मसला ही रह जाए किनारे और किधर के किधर बात निकल जाए। उनका हमारा जो पर्सनल मामला रहा है ना, हम सिर्फ आले मुख्तार के ग़ुलाम हैं और आले मुख्तार के वफ़ादार हैं और उनकी वफ़ादारी में रहेंगे, है ना। बस हुजूर कायदे मिल्लत तो मैं नहीं कहूँगा हजरत आपको, सज्जादा नसीन सरकार कला, है ना। कायदे मिल्लत इसलिए नहीं कहूँगा कि अगर कायदे मिल्लत कहूँ तो तौहीन है आपके मनसब की, है ना। और आपने खुद एक बयान में कहा था कि मैं जो हूँ तो एक मजहबी आदमी हूँ, रूहानी स्पिरिचुअल आदमी हूँ, मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ। तो जब पॉलिटिकल नहीं है आप, नहीं आप दीनदार हैं, मज़हब नहीं है, मज़हब और दीन में फ़र्क है, कर दिया तो फिर हजरत आप कायदे मिल्लत ये जो कह रहे हैं आप लोगों को ये धोखा देते हैं मौलवी। कि ख़ास तौर से जितने जामे अशरफ का स्टाफ है हुजूर सबसे पहले से बदलिए और मौलाइयत को लाइए, मौलाइयत को आम कीजिए। हुजूर माह मुहर्रम के अंदर जो है ताज़ियादारी अज़ादारी धूमधाम से हो। 13 रजब नहीं होता है हुजूर खानकाह सरकार कला में, जबकि यानी कि 9 रजब से 11-12 रजब तक का उर्स चलता है। 13 रजब को भी यानी जश्न मौलूद काबा होना चाहिए हुजूर, आपकी सरपरस्ती में होना चाहिए। सरकार आपने बाब अली बनाया है, वहाँ पर 13 रजब का जश्न होना चाहिए हुजूर, चाहे आप जिस तरीके से करें। ये 13 रजब का जश्न शुरू हो, गाज़ी अब्बास का आलम लगे और जो है तो क्या कहते हैं ताज़िया रखा जाए, इमाम बारगाह बने, ये हमारी गुजारिश है। और इसमें जो है तो हम बोलने में हमने जो बोलना था हमने बोला, बिंदास बोला, है ना, क्योंकि हम भी ग़ुलाम हैं। बहरहाल हम कितने भी ऊपर हो जाएं तो आपकी जूते की नोक के ऊपर तो नहीं है ना। हजरत साहिब सज्जादा के एक चचा जात भाई हमको कहने लगे कि माफ़ी मांगो, आप गुनाहों से तौबा करो और जो आपने कल गाली गलौज की थी उस पर वापस आओ। तो मतलब कि मैं गाली गलौज से वापस नहीं आऊँगा, चाहे आप मेरा मर्डर कर दो या फिर जो है तो मुझे जहन्नम में डाल दो, चलेगा, मुझे मंजूर है। मगर आइंदा नहीं देंगे, हम ये मानते हैं। मगर आइंदा इन लोगों ने कभी छेड़ा, नफीस ने या मुहीउद्दीन मियाँ ने या इनके गुर्गों ने कभी छेड़ा तो हम बहुत बुरा फिर जो है तो इनको वो करेंगे, है ना। ये जो जिब्बा और ताज पहन के जो अशरफी मियाँ का घूम रहे हैं ना, ये सब पे बैंड लगवाएंगे, है ना। फिर रास्ते में पकड़ के इनको वो करेंगे। ये जो बसखारी के लोग जो है ना महाराष्ट्र में, बसखारी के पीर जिनको कुछ आता जाता नहीं है, दुआ मांगते भी नहीं आता है, सट्टे का नंबर निकाल के, आंकड़े का मटके का नंबर निकाल के दे रहे हैं। सबका एक एक लोगों का हम जो है तो फिर निकाल के बायोडाटा रखेंगे, है ना। तो हुजूर सरकार कला थे, उसके बाद एदार मियाँ सज्जादा नसीन रहे, महमूद मियाँ रहे, आगे मुआमिद मियाँ हैं, उनके बाद उनकी औलादें रहेंगी। सब हमारे सर के ताज हैं। हाल मुख्तार का पैदा हुआ एक दिन का बच्चा भी हमारे सर का ताज है। तो बहरहाल हुजूर अपने पुराने गुलामों को याद रखिए, उर्सों के मौके पर हमारे ऊपर नज़र करम कीजिए। लोग अंदर कहते हैं जो खानवादे का वो निकल जाए, साहिब सज्जादा का हुक्म है खरका पोसी के टेम। वो आदमी कहता है जो खुद ख़ानदान का नहीं है, वो कहता है कि खानवादे के जो नहीं है वो लोग बाहर निकल जाएं। ये कौन सी बात है हजरत? खानवादे का जो है वो रहे, पैसे वाला रहे तो उसको कोई उठाता नहीं है ना। फिर वो बाहर कर रहे कि रजील रहे। अब कहाँ के पैसे वाले आते हैं, मैं सब बोलना नहीं चाहता, किसी रियासत का किसी शहर का नाम लूँ तो जबरी की बदनामी की बात है। तो बहरहाल हजरत
आप भी सरकार कला के मुरीद हो, मैं भी सरकार कला का मुरीद हूँ। ये अलग बात है, आप सरकार कला का खून है आपकी नस्लों में, मेरे अंदर ग़ुलामी है, तो कम से कम इतना तो बोलने का तो हक़ था मुझे। और आज मौका और दस्तूर था, तो हमने कहा, बोला। बहुत दिन से सारी बातें थी बोलने की, रह जा रही थी, आज वक्त तो था, हमने बोला, है ना। और हुजूर जो है हमारी बातों पे गौर कीजिए। हुजूर साहिब सज्जादा, हुजूर महमूद मियाँ का वक़ार बुलंद रहे, हुजूर महमूद मियाँ की सज्जादगी सलामत रहे, हुजूर महमूद मियाँ की तमाम औलादें सलामत रहे, हुजूर महमूद मियाँ के घर में जिन लोगों ने शरारतें की शादी ब्याह के मौके पर, ऐसे सारे लोग जलील व रुस्वा हो, और साहिब सज्जादा का तबीयत सेहत सब अच्छा रहे, और इनका और उरूज हो, और साहिब सज्जादा जो हैं तो दीन हुसैन का काम करें, इस तरीके का काम करें, अहले बैत की मोहब्बत में इस तरीके से मुस्तगरक हो जाएं जिस तरीके से मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी थे, हुजूर अशरफी मियाँ थे। और इन लोगों के चक्कर में ना पड़े हजरत, जिन लोगों ने आप पीछे सईद नूरी के साथ में बैठे थे आप जाके NRC से पहले, तो खुला दुश्मनी जिन लोगों ने हुजूर सरकार कला को सताया, आपने उनके साथ में जाके बॉम्बे में बैठ गए थे। ये अच्छी चीज़ें नहीं थी हजरत, बहुत बुरी मिसयूज़ हुई है खान का ईमान अबू तालिब और माविया के मसले पर, है ना। माविया के मसले पर आप कफिल लिसान रहिए, मगर ईमान अबू तालिब का आप खुल्लम खुल्ला इकरार कीजिए हजरत, और अलम और पंजा और मुहर्रम और 13 रजब का एहतमाम हो। और ये जितने मौलवी भरे हैं ये सब को चेंज कीजिए हजरत। ये आपके यहाँ जो मैनेजर बैठा है ये भी सही मुंह से बात नहीं करता है आने वाले मेहमानों से, जबकि होना तो ये चाहिए जब मेहमान आए तो वो मैनेजर जो चश्मे वाला बैठता है सही मुंह से बात, उसको तो इतना एटीट्यूड है जैसे खुद ही मालिक है खानका का, है ना। जबकि मालिक कोई भी नहीं है, सारे के सारे हुजूर इज़ार मियाँ कहते थे कि मैं मालिक नहीं हूँ, मैं मुहाफिज हूँ यहाँ का। तो मैं सबसे यही गुजारिश करता हूँ कि ये सारे स्टॉप को बदला जाए और मौलाइयों को लाया जाए और खानकाई तालीम जारी हो, रोज़ाना ज़िक्र बिल जहर हो, ज़िक्र खफ़ी, ज़िक्र जली हो। माह रमज़ान में या दीगर मौके पे लोगों को दुआए हिज़्बुल बहर, दुआए हैदरी का चिल्ला कराया जाए, है ना। और उर्स के मौके पर जो है तो हमारे यहाँ जब किचौचा से निकलता है तो मैं तो ये कहता हूँ कि 28 तारीख को जब आप सज्जादगी का जुलूस निकलता है उस दिन जो है तो सबको कहिए कि भाई खाने ही पके किचौचा में, लोग वहीं से खाना खाएं, सारे कमरों में ताला रहे खानकाह सरकार कला के, सब लोग जुलूस के साथ में आए। और बानवा के फ़कीर, रफ़ाई फ़कीर, मदारी फ़कीर, जलाली फ़कीर, सारे लोग रातिब करते हुए, सहनाई वाले पड़ाका फोड़ते हुए, आतिशबाजी के साथ में, धूमधाम के साथ में जुलूस से गौसिया आए। 1 घंटे में यहाँ पहुँच जाता है, फिर आप आराम कर रहे हैं असर के बाद। जुलूस इतनी धूम से आना चाहिए हमारा कि वैसा किसी का जुलूस ही ना आए, है ना। जितनी पब्लिक रहती है उतनी धूम से हमारा जुलूस भी आना चाहिए, बस यही हमारी गुजारिश है। और इंशाअल्लाह अगर आप कहेंगे तो हम सारी चीज़ों को उसमें गाइड वो करेंगे, जुलूस यानी किस तरीके से इन्हें वहाँ से शानदार तरीके से आ सकता है। क्योंकि सरकार कला के ज़माने में तो कहार लोग पालकी उठा के लाते थे, आज तो इन्हें बहुत सारे लोग हैं हमारे पास में, मगर जो है तो थोड़ा सा सिस्टम ये मौलवियों की वजह से बिगड़ा हुआ है। इन मौलवियों को किनारे करेंगे हजरत जब जो है खानका सही चल पाएंगी। ये सजर हुजूर अशरफी मियाँ का लगाया हुआ है, और हुजूर अशरफी मियाँ की लगाया हुए सजर में अली अफजल, अली अकमल, अली वाली, अली वाला की सदा नहीं बुलंद हो रही है। यहाँ पे नजरुल बारी तो भलती भलती बातें कर रहा है, एक कुत्ते का तो मुंह काला कर देना चाहिए। हुजूर करम फरमाइए, है ना। सरकार गुलामों पे करम फरमाइए, लाज रखिए, और ख़ानदान में आले मुख्तार में सब के साथ में इत्तेहाद, इत्तेफाक, मुरव्वत और मोहब्बत रहे। सारे खानवादे आले मुख्तार मिलजुल के रहे, बस यही हमारी दुआ है। इलाही ताब आबाद आस्ताने यार रहे, ये आसराए हम गरीबों का बरकरार रहे। तरक्कियों पे तेरे हुस्न का निखार रहे, तेरे चमन में हमेशा यूं ही बहार रहे। हक अशरफ या अशरफ, हक मुख्तार या मुख्तार।